सब्सक्राइब करें सीबीएसई मैथ्स बाय आरपी गुप्ता को और दबाएं बेल आइकन और पाएं क्लास 9 से क्लास 12 तक का सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड का मैथ्स का सॉल्यूशन। Hello students, welcome back to CBSE Maths by RP Gupta. So students, in this video I am going to teach you triangle of class 9. Okay, this is a very important video for class 9th. Here in this video I will teach you the exercise 7.1 of class 9. So let's see what is given here in this exercise. Yeah, so here one first question is given here. In a quadrilateral ACBD, okay, ACBD is a quadrilateral, AC is equal to AD and AB bisect angle is C figure, so that triangle ABC is congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? Okay, first of all take the triangle ABC. So what I can say in triangle ABC and in triangle ABD. So now I have taken two triangles. The first one is the ABC and the second one is the ABD. Let's see. So after this, what I can say here, look at this triangle ABC. In the upper part is the triangle ABC. This A, the point B, this is the point C, and this is the ABD. So from these two triangles, what I can say, first of all I can say AC is equal to AD. I can say AC is equal to AD. It is given here. AC is equal to AD. I can say it is given here. Okay, and after this what you can say angle CAB. What you can say, angle CAB. Angle CAB is this angle. This angle will be equal to this one. Angle CAB equals to angle DAB. DAB. Both are equal. Both are equal. Q. These are the bisecting angle. Because I can say AB bisect angle A. AB bisect एंगल A, ठीक है। इस तरीके से AB क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल AB को। और आप देख सकते हैं AB जो है दोनों में कॉमन है, तो AB इक्वल टू AB एंड दिस इज द कॉमन लाइन। ये क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। तो हम यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल को अप्लाई कर सकते हैं, देखना, साइड एंगल साइड। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ABD. ABC is congruent to triangle ABD. And for what can you say about the BC and BD? I can say BC is equal to BD by CPCT. BC is equal to BD by CPCT, corresponding parts of congruent triangle. I hope all of you understood this question. Let's see the next question. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC, angle DAB is equal to CBA. Prove that triangle ABD and triangle BAC are the congruent. Same question as the previous one. Let's see how to do. First of all हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। हमने दो ट्राइंगल ले लिए, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल BAC। तो सबसे पहले ABD को देखते हैं, ABD, दिस इज द ट्राइंगल ABD। लेट मी हाईलाइट इट। सो इसको हम अगर हाईलाइट करना चाहते हैं तो हाईलाइटर का यूज कर लेते हैं। देखिए ये पार्ट एंड दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, दिस इज द ट्राइंगल ABD, ठीक है। ये कौन सा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ABD है हमारा, ठीक है, ये वाला पार्ट। और जो लोअर पार्ट है दैट इज द ट्राइंगल ABD हो गया। और ABC कौन सा पार्ट होगा हमारा, BAC। BAC पार्ट को भी हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, उसको हम कलर थोड़ा डिफरेंट यूज कर लेते हैं। BAC पार्ट कौन सा होगा, BAC, दिस पार्ट, दिस ट्राइंगल विल बी the VAC, this one। okay, so let's see how to do this question, very easy question। कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्राइंगल ABD एंड BAC, अगर हम सबसे पहले बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे करेंगे सॉल्व, तो देखिए ABD और BAC में सबसे पहले हमारे पास आता है कि AD जो है वो BC के इक्वल है। तो सिंपली राइट डाउन AD इक्वल टू BC, ये क्या है, गिवन है कि AD इक्वल टू BC गिवन है हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पर एक चीज और गिवन है कि एंगल DAB, एंगल जो DAB है वो किसके इक्वल है, एंगल DAB इक्वल टू CBA, इट इज ऑल्सो गिवन, ये भी गिवन है हमारे पास। और लास्ट में एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी, कॉमन कौन सा पार्ट दिख रहा है, AB इज कॉमन बिटवीन बोथ,
तो व्हाट यू कैन से ए बी इक्वल टू ए बी विच इज द कॉमन, वो क्या है, कॉमन है दोनों में। तो हम यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करेंगे, साइड एंगल साइड। अगेन हम लोग बोल देंगे बाई SAS रूल। SAS रूल से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। ट्राइंगल ABD जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल BAC के, ठीक है। और सेकेंड पार्ट के लिए अगर हम बात करें तो हम सिमिलरली बोल सकते हैं कि BD इक्वल टू AC बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और इसी तरीके से अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट थर्ड पार्ट के लिए भी हम लोग यही बोल देंगे कि एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, just a second, this is the symbol of triangle, तो ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। ये भी कैसे हो जाएगा, बाई CPCT। सिंपल क्वेश्चन, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भी अच्छा क्वेश्चन है। AD एंड BC आर द इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB, ओके, नो इशू। सो दैट CD बाइसेक्ट AB। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो ट्राइंगल ले लेंगे और इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। कौन कौन से ट्राइंगल हम लोग लेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्राइंगल लेंगे AOD लेंगे और कौन सा लेंगे, BOC। सबसे पहले देखते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, इन ट्राइंगल AOD हमारे पास कहाँ मिल रहा है, दिस इज द A, दिस इज द O, दिस इज द D। ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये जो पार्ट है ये ट्राइंगल AOD को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो सेकेंड पार्ट है, लेट मी टेल यू, यस, ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो OBC को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल, अब हमारा कौन सा हो जाएगा, BOC। AOD एंड ट्राइंगल BOC, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ टू डू, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है, AD एंड BC आर द इक्वल परपेंडिकुलर। हमको पता है कि AD और BC आर द इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। तो यहाँ पर AD जो है वो BC के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि इक्वल परपेंडिकुलर है, गिवन है तुम्हारे क्वेश्चन में, इक्वल परपेंडिकुलर इक्वल है, ठीक है। सेकेंड पार्ट की बात की जाए तो एंगल COBC, एंगल OBC जो होगा वो किसके इक्वल होगा, OBC विल बी इक्वल टू OAD। तो हम इसको बोल सकते हैं एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC। बोथ कैसे हैं, 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं ईच इज 90 डिग्री, दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात की जाए, अगर देखें इसको, ये वाला एंगल, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस वन। व्हाई दीज टू एंगल्स आर इक्वल, बिकॉज वी कैन से वन थिंग चिल्ड्रन, दैट these are the vertically opposite angles. So what you can say angle AOD is equals to angle BOC. These are the vertically opposite angle. ये कैसे एंगल है, ये vertically अपोजिट एंगल है। तो हम यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, साइड है, एंगल है, एंगल, तो हम अप्लाई करेंगे कौन सी, एंगल साइड बाय AS कॉन्ग्रुएंसी रूल। हम AS कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल AOD है वो क्या है, दैट इज द कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। ट्राइंगल AOD जो है वो BOC के कैसे हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया है। और अब हम क्या कह सकते हैं, so that CD bisect AB. Now I can say very easily that OA is equals to OB. I can say OA, this part OA is equals to OB by CPCT, and if OA is equal to OB, then I can say AB divides CD. What I can say, CD bisect AB. Now I can say, hence I can say CD bisects AB. CD bisects AB. But this is the answer. Okay. Now we are moving to the next question. Yeah, it's a very easy question. Let's see how to do this question. तो इस question बच्चों क्या given है कि L and M are two parallel lines. These are two parallel lines. This is the first line. This is the second line, and intersect by another pair of parallel lines P and Q. This is the first line P, and this is the second line Q. So that triangle ABC is equal to triangle CDA. तो बच्चों यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ट्राइंगल CDA नहीं प्रूव करेंगे, बल्कि प्रूव करेंगे ट्राइंगल ABC इज
कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल कौन सा सी डी ए, दो ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी और सी डी ए। सबसे पहले ए बी सी देखते हैं, ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ये हमारे पास ए बी सी बन रहा है, दिस द ए बी सी, और हमारे पास कौन सा बनना है, सी ए डी। ये जो है ये ए बी सी है फर्स्ट वाला, और सेकेंड वाला कौन सा है, सी ए डी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं कि एंगल बी ए सी, हमने क्या कहा, हमने बोला कि एंगल बी ए सी किसके इक्वल होगा। अब बी ए सी कहाँ पे एंगल बन रहा है, ये एंगल बी ए सी है, तो आप देख सकते हैं ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, डी सी ए के, बी ए सी विल बी इक्वल टू डी सी ए, डी सी ए। अभी इक्वल क्यों होंगे, तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों जो एंगल हैं कैसे एंगल हैं, अल्टरनेटिव एंगल्स। तो हम इस तरीके से बोल देंगे दीज आर द अल्टरनेटिव एंगल्स, ये दोनों अल्टरनेटिव एंगल्स हो गए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम ये वाला एंगल की, अगर इस वाले एंगल की बात करें, एंगल डी ए सी, मेरी बात सुनना ध्यान से, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करें एंगल डी ए सी। जो एंगल डी ए सी होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू एंगल बी सी ए। जो बी सी ए होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी ए सी के इक्वल हो जाएगा। ये भी कैसा एंगल है, ये भी अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, ये भी अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। तो बोथ आर द अल्टरनेटिव एंगल्स। नाउ व्हाट यू कैन से, अगर ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए तो आई कैन से वन मोर थिंग चिल्ड्रन ओवर हियर, what I can say AC, this line AC is equal to AC, that is the common, AC is equal to AC, that is the common। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं बाई डबल AS, एंगल साइड। एंड वन मोर थिंग डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग डबल ए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डबल ए अप्लाई कर सकते हैं, ट्रिपल ए अप्लाई कर सकते हैं, डबल ए एस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बाई डबल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए बी सी होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल सी डी ए के। ठीक है, इट इज अ सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। तो लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए, ओके, एंड एंगल बी इज एनी पॉइंट ऑन L, okay, BP and BQ are perpendicular from B to the arms of LA, angle A, okay, see figure, so that triangle APB congruent to triangle AQB। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले करना क्या है तुमको, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए सिंपल सा है। सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB। हमने दो ट्राइंगल ले लिए APB और AQB। अब हम अगर APB की बात करें तो APB द लोअर वन, APB हमारे पास कौन सा है, दिस इज द A, दिस इज द P, दिस इज द B। ये हमारे पास APB हो गया। वन सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर। और द अपर वन AQB, ये वाला जो ट्राइंगल है ये AQB हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इन दोनों ट्राइंगल में हमको सबसे पहले एक चीज जो सबसे अच्छी चीज नजर आ रही है, हम बोल सकते हैं एंगल QAB, एंगल QAB इज इक्वल्स टू एंगल PAB, QAB इज इक्वल्स टू एंगल PAB, क्योंकि ये जो लाइन है ये इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। दीज आर द इक्वल, तो हम इसको बोल सकते हैं बाइसेक्टिंग एंगल। ये कैसे एंगल है, बाइसेक्टिंग एंगल है, तो हम बोल देंगे बाइसेक्टिंग एंगल्स। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ और हम देख सकते हैं कि एंगल AQB, एंगल AQB इज इक्वल्स टू एंगल BPA या APB, AQB इज इक्वल टू APB। ये दोनों कैसे हैं, देखो बेटा, ये जो एंगल है ये AQB है और ये एंगल APB है, तो ये चीज़ 90 डिग्री, दोनों कैसे डिग्री हैं, 90 डिग्री के एंगल हैं। उसके बाद AB हमको क्या मिल गया, AB इज इक्वल टू AB एंड विच इज द कॉमन, ये कैसा है, कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो अगेन बाय डबल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, डबल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल हमने डबल एस में अप्लाई कर दिया, तो फिर से हम क्या बोल देंगे, ट्राइंगल APB जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल AQB के। APB is congruent to triangle AQB. Now similarly I can say BP is equal to BQ, BP is equal to BQ, क्यों, by CPCT, क्योंकि BP is equal to BQ हो जाएगा by CPCT, corresponding parts of congruent triangle। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना।
ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स सी हाउ टू डू। इस क्वेश्चन में गिवन है कि इन फिगर ए सी इक्वल टू ए ई, ठीक है, ए सी ए के इक्वल है, ये पार्ट गिवन है, ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए डी, कोई दिक्कत नहीं, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, सो दैट बी सी इक्वल टू डी ई। सबसे पहले बी सी देखो, बी सी कहाँ मिल रहा है तुमको, सो बी सी दिस लाइन द बेस वन, बी सी द बेस, बी सी इक्वल टू डी ई, और डी ई कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि हमको ट्राइंगल कौन सा लेना है, मेन चीज़ तो ये है। अगर आपको एक बार ट्राइंगल पता चल जाएगा कौन सा लेना है, देन यू आर एबल टू सॉल्व इट वेरी इजली। ओके, सो लेट्स सी हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी, क्योंकि ए बी सी में हमको बी सी मिल जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड, एक तो हमने ए बी सी लिया, और एक कौन सा ले सकते हैं, दूसरा ट्राइंगल हम ले सकते हैं ए डी ई, क्योंकि ए डी ई में हमको मिल जाएगा क्या, डी ई मिल जाएगा, एंड ट्राइंगल ए डी ई, ये दो ट्राइंगल हमने ले लिए, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी ई। तो ए बी सी और ए डी ई में सबसे पहली बात तो ए बी इक्वल टू ए डी, ये तो कॉमन पहले से था, ठीक है ना, ये तो गिवन है, इक्वल है, तो हम इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है, ये गिवन है हमारे पास, ये क्या है, गिवन है। एंगल बी ए डी, अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, ये कह रहे हैं कि एंगल बी ए डी, जस्ट अ सेकेंड, इधर लिख लेते हैं कि एंगल बी ए डी जो है वो एंगल ई ए सी के इक्वल है, ओके, और ए सी इक्वल टू ए ई, एक चीज़ और हमारे पास गिवन है यहाँ पे, जिसको भी लिख लो, ए सी इक्वल टू ए ई, ए भी गिवन है, ये भी क्या है, गिवन है, ठीक है। तो डबल ए तो ऐसे लग गया, ये क्या हो गया, डबल एस हो गया, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, बी ए डी कहाँ पे पड़ रहा है, ये पार्ट एंगल बी ए डी है, और ई ए सी कहाँ पे मिल रहा है, ई ए सी, ये वाला एंगल कैसा है, ई ए सी है। अच्छा एक बात बताओ जरा, अगर हम बी ए डी में ये वाला एंगल ऐड कर दें, डी ए सी, ये वाला एंगल बी ए डी में अगर हम ऐड कर दें कौन सा, डी ए सी, तो एक सेकेंड, बी ए डी और प्लस डी ए सी इक्वल टू ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। तो जरा बी ए डी प्लस डी ए सी दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल हमको मिल जाएगा। तो कौन सा एंगल होगा, एंगल बी ए सी, ये कौन सा एंगल बनेगा, एंगल बी ए सी, ये कौन सा एंगल बन गया, ये बन गया एंगल बी ए सी। सम ऑफ दिस एंगल एंड सम ऑफ दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस पार्ट, टोटल पार्ट। एंड आफ्टर दिस अगर हम बात करें ट्राइंगल ए डी ई की, तो ए डी हमारे पास क्या बनना, ए डी ई, तो मतलब सम ऑफ दिस पार्ट प्लस सम ऑफ दिस पार्ट विल बी इक्वल टू एंगल ई ई, हमने कौन सा ट्राइंगल ये ए डी ई ना, तो ए डी में कौन सा हो जाएगा, ई ए डी, ई ए डी, ट्राइंगल बी ए सी विल बी इक्वल टू ट्राइंगल ई ए डी, ठीक है। एंगल बी ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी ए सी विल बी इक्वल टू एंगल ई ए डी। आप इसको ई ए डी बोल दीजिए और चाहे आप बोल दीजिए इसको ई ए सी बोल दीजिए, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट से हम बोल सकते हैं तो एंगल बी ए सी जो है वो इक्वल है एंगल ई ए डी के, ठीक है। ये कैसा है, ये इक्वल है, क्यों हमने इसको हमने बोल दिया फर्स्ट, तो हम इसको बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ये से इक्वल है। तो हमारे पास कौन सा लगेगा, साइड एंगल साइड, कौन से कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई कर सकते हैं, साइड एंगल साइड, तो हम यहाँ बोल देंगे बाई SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल, ये साइड एंगल साइड रूल लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ट्राइंगल ABC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ADE के। अगर ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ADE के, तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि BC इक्वल टू DE, बहुत ही सिंपल तरीके से, किससे, बाई CP CT। बस दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो AS इज अ लाइन, तो यस तो हमको कहीं दिख नहीं रहा है इसमें, AS इज अ लाइन, ओके फाइन। ये मुझे लग रहा है कुछ मिसप्रिंट है, क्योंकि AS यहाँ पे कहीं नहीं है, तो इसको हम बोल देंगे B है, ये AB, ये क्या है, B है, AB इज अ लाइन, क्योंकि AS नहीं दिख रहा है। AB इज अ लाइन सेगमेंट विद द मिड पॉइंट, हाँ ठीक है, आ गया। D and E are the points on the same side, D and E are the points on the same side of AB such that angle BAD is equal to angle AB and angle EPA is equal to angle DPB, okay fine। So that triangle DAP, चलिए सबसे पहले ट्राइंगल ले लेते हैं अपना ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल DAP
एंड ट्राइंगल EBP, ये दो ट्राइंगल हमने ले लिए। हमने ट्राइंगल कौन सा लिया, DAP लिया है और EBP लिया। तो सबसे पहले DAP कहाँ बनना हमारे पास, दिस पार्ट, दिस एंगल, ये जो एंगल हमारे पास बनना है, ये वाला एंगल, ये वाला जो पार्ट है, ये जो हमने रेड कलर से इसको किया है डिजाइन, तो इसको ये कौन सा एंगल है, ये DAP है। और अगर हम बात करें EBP की, तो ये जो पार्ट है यहाँ से ये जो पार्ट होगा हमारा, ये पार्ट होगा EBP, ठीक है। ये दो पार्ट हो गए, बहुत ईजी तरीके से इसको भी सॉल्व हो जाएगा, कोई ज़्यादा तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं। तो DAP में देखो जरा कुछ, क्या DAP में तुमको कुछ, DAP और EBP में कुछ कॉमन मिल रहा है तुमको। सबसे पहली बात अगर हम बात करें यहाँ पर कि DAP और EBP में हमको क्या मिल रहा है, कुछ क्या कॉमन दिख रहा है। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमको एक चीज़ दिख रही है कि AP जो है वो BP के इक्वल हो जाएगा, AP विल बी इक्वल टू BP। अभी इक्वल क्यों होगा, AP क्यों BP के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि P क्या था, P द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये दोनों इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि P क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB है, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि ये वाला एंगल, एंगल APD, हमने कहा कि एंगल, जस्ट अ सेकेंड, दिस एंगल APD, अब APD कहाँ बन रहा है, दिस एंगल, ये वाला एंगल देखो जरा। अगर हम इस एंगल की बात करें, एंगल APD विल बी इक्वल टू विच एंगल, दिस पार्ट, 1 सेकेंड, हम लोग यहाँ पे इस तरीके से बोल सकते हैं, एंगल AP, ये वाला एंगल देखते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल तो इक्वल हो गए हमारे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एंगल BAD, मेरी बात सुनना, हमने बोला एंगल BAD। अब BAD एंगल कहाँ बनना है, देखो BA है, ये A है और ये D है, BAD, ये वाला पार्ट BAD, जो एंगल BAD है वो किसके इक्वल है, वो AB के इक्वल है, AB के। और ये कैसा है, ये गिवन है हमारे पास, ये गिवन है, ठीक है। और लास्ट में एक चीज़ और गिवन हमारे पास है, क्या गिवन है कि जो EP, यहाँ पर एक चीज़ हमारे पास और गिवन है, जो एंगल EPA है, EPA किसके इक्वल है, EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। जो एंगल EPA है वो किसके इक्वल है, दैट इज द DPB, ये DPB के इक्वल है ना। तो एक चीज़ हम और भी बोल सकते हैं ना यहाँ पे, हम लोग एक चीज़ और कह सकते हैं कि एंगल EPA जो है वो DPB के इक्वल है। तो अगर हम इसमें एंगल EPA में, इन एंगल EPA, अगर हम एंगल EPA में DPE ऐड कर दें, DPE ऐड कर दें, तो हमें देखना क्या मिलेगा, इधर भी हम ऐड कर देते हैं DPB प्लस एंगल DPE। अब देखो EPA प्लस DPE, EPA कहाँ मिल रहा है बच्चों, EPA, देखना मेरी बात समझना, EPA, दिस इज द पॉइंट E, दिस इज द पॉइंट P एंड दिस इज द पॉइंट A। तो ये वाला एंगल हमारा EPA है ना। और उसके बाद हमने कौन सा ऐड किया, DPE ऐड किया। तो DPE कहाँ बनना है, दिस इज द D, दिस इज द P एंड दिस इज द E, मतलब ये वाला एंगल। तो दिस विल बी इक्वल टू दिस वन। सो व्हाट आई कैन से ट्राइंगल DPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। अब ये कॉन्ग्रुएंट दोनों क्यों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कौन सा हम लोग रूल लगा रहे हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं एंगल, सुनना मेरी बात को, एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, बाई SAA, एंगल साइड एंगल रूल, ये हमने अप्लाई कर दिया। तो सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं कि AD इज इक्वल टू BE बाई CP/CT। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C, M is the midpoint of hypotenuse AB, ठीक है। See the joint to M and produce to a point D such that DM is equal to CM. Point D the midpoint of B, okay. See figure so that इतनी चीज़ें प्रूव करनी है। लेट्स सी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AMC
एंड ट्राइंगल BMD। दो ट्राइंगल हमने ले लिए AMC और BMD। अब जरा देखते हैं AMC हमको कहाँ मिल रहा है बच्चों। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, AMC को हाईलाइटर यूज कर लेते हैं। AMC ये वाला पार्ट जो है AMC है, दिस एंड दिस वन AMC है, और दूसरा जो पार्ट है बच्चों उसको हम रेड कलर से हाईलाइट कर सकते हैं BMD। तो B ये वाला पार्ट जो है वो पार्ट कैसा है, ये BMD। ठीक है, ये दो ट्राइंगल हमारे पास। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी 1 सेकेंड। या कि CM, जो CM है वो किसके इक्वल है, CM DM के इक्वल है। मतलब दिस लाइन CM इज इक्वल टू DM, दिस लाइन। अब ये कैसा है, गिवन था, ये गिवन था हमारे पास। ठीक है, और बच्चों एक चीज हमको और पता है, यहाँ पे क्या पता है कि कह रहे हैं कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। अगर AB का मिड पॉइंट M है तो हम बोल सकते हैं कि जो AM होगा, AM किसके इक्वल होगा, AM विल बी इक्वल टू BM, AM विल बी इक्वल टू BM। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि Q क्या है, Q अगर हम बात करें यहाँ पे ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो M है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ, व्हाट आई कैन से M इज मिड पॉइंट ऑफ क्या, AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, अब ये वाला एंगल जो होगा बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट हैं। ठीक है, तो एंगल हम कौन सा एंगल लेंगे, एंगल AMC इक्वल्स टू एंगल DMB, AMC इक्वल टू DMB। और है कैसे, ये जो दोनों एंगल हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, साइड एंगल। तो ऐसा कोई रूल होता है तो हम क्या बोल देंगे, बाई SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। ठीक है, अब अगर बात करें इसके रिमेनिंग पार्ट्स की तो बहुत ईजी तरीके से हो जाएंगे। सेकेंड पार्ट देखो क्या है, ट्राइंगल DBC इज राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट के लिए DBC इज राइट ट्राइंगल क्यों कह सकते हो, क्योंकि देखो AC जो है, AC लाइन कौन सी, ये लाइन जो AC जो है पैरेलल है BD के, EC इज पैरेलल टू BD है ना। और जब EC पैरेलल है BD के तो हम एक चीज बोल सकते हैं कि एंगल DBC प्लस एंगल ACB, DBC प्लस ACB इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। और अगर ये दोनों इक्वल टू 180 डिग्री हो गया तो हम बोल सकते हैं क्या, हम बोल सकते हैं बच्चों कि एंगल DBC इक्वल टू 180 माइनस 90। ऐसा क्यों हुआ, DBC इक्वल टू 180 माइनस 90 क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर देखिए ACB हमें ऑलरेडी पता है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C। ABC में जो ABC ट्राइंगल था, ये जो पार्ट था ये कितना था, 90 डिग्री था, हमें पहले से पता था, ये 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ट्राइंगल DBC भी जो होगा वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, करें ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB, आप नुआंस से करेंगे। ठीक है, और फोर्थ पार्ट करें CM इक्वल टू हाफ AB। तो फोर्थ पार्ट हम आपको करके दिखा देते हैं, CM इक्वल टू हाफ AB कैसे होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको देखो पता है कि AB जो है वो CD के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि बाय CP/CT हम बोल सकते हैं AB